Hello students, welcome to online maths class. This is your maths teacher. I hope all of you are attending online classes daily and doing homework for the day. Dear students, yesterday we started a new topic that is mathematical modeling, in which we studied how we can derive any formula or how we can solve any questions by deriving its formula and following the steps that were first of all formulation. Next is solvation, and the last one is interpretation. Now, moving forward, concept time 14, which is given at SB 30 in your supplementary book, refers to the topic importance of validation in mathematical modeling. मैथमेटिकल मॉडलिंग में वैलिडेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, आज हम ये स्टडी करेंगे. फॉर दिस यू कैन ओपन SP30 फ्रॉम योर सप्लीमेंट्री बुक. यू हैव 10 seconds to open that. It's 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I hope all of you have opened this page. So let's study what is importance of validation in mathematical modeling. In the last class we have studied there are 3 steps to solve a word problem. First of all formulate the word problem. हमने formula derive करना है. Second is to solve that. We have to find out its solution. And third one was interpretation. हम इंटरप्रेट करेंगे जो हमसे पूछा गया वो कितना आया था. Further, we shall add one more step which will be able to check whether the solution taken out is valid in real life or not. तो इसे हम क्या कहते हैं, वैलिडेशन. फोर्थ स्टेप हम ये इन्वॉल्व करेंगे क्या जो सोल्यूशन हमने निकाला है वो वैलिड भी है रियल लाइफ में या नहीं. ऐसा ना हो कि वो सिर्फ एक सिचुएशन के लिए सूटेबल हो बट दूसरी सिचुएशन पे वो लगे ही ना, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन निकले ही ना. सो दैट इज कॉल्ड टू चेक द वैलिडिटी ऑफ सोल्यूशन और दिस स्टेप इज कॉल्ड वैलिडेशन. तो अब टोटल कितने स्टेप्स हो गए हमारे पास, फॉर्मुलेशन, सॉल्वेशन और सोल्यूशन, interpretation, and the last one is validation. You can also write the definition of validation: the process of checking the answer against reality and modifying the mathematical description if necessary is called validation. Validation का मतलब क्या होता है कि हम रियलिटी में चेक कर रहे हैं कि जो भी हमने मॉडिफाई करके फॉर्मूला निकाला है या जो भी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन हमने दी है वो वैलिड भी है या नहीं है. So ultimately you will reach to this table, that is formulation of table. This would be the first step से हम गए second step पे solution of the problem. Solution of the problem से हम जाएंगे third step पे interpretation of problem, and at the final step checking or validation of solution, right? So this is the table of mathematical modeling. You can also draw this table in your notebook. Let's discuss this with the help of an example which is given at SB31, example number 19. Maheen and Muskan are two sisters who want to paint two rectangular walls of their bedroom. दो sisters हैं जो अपने bedroom की walls को paint करना चाहती हैं. One wall is 15 meter long and 8 feet high. एक wall जो है उसकी length तो 15 feet long है और उसकी height जो है वो 8 feet है. The another wall is 12 feet long and 8 feet high. दूसरी वॉल भी है जो वो उसकी 12 फीट की लेंथ है बट 8 फीट की हाइट है. दोनों की लेंथ में डिफरेंस है, एक की 15 फीट लॉन्ग है एक की 12 फीट लॉन्ग है बट हाइट जो है वो दोनों की सेम है. दे वॉन्ट टू पुट 2 coats और ऑफ पेंट ऑन द वॉल्स. They know that 1 liter of paint will cover about 350 square feet of the surface. Will 1 liter of paint be enough? वो चाहती है कि हम पेंट की 2 कोट्स लगाएं, एक कोटिंग करने के बाद दूसरी कोटिंग करें
और उन्हें पता है कि 1 लीटर पेंट का जो डिब्बा है वो 350 स्क्वायर फीट के सरफेस को कवर कर लेता है डबल कोटिंग में। तो क्या उनके पास इतना पेंट इनफ है? तो सबसे पहले स्टेप कौन सा रहेगा? फॉर्मुलेशन। हम क्या करेंगे? हम फॉर्मुलेशन करेंगे। सो फॉर्मुलेशन में क्या है? अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड इट्स मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। डायमेंशंस ऑफ द वॉल्स लिख ली दोनों। 1 लीटर पेंट कितना एरिया कवर कर सकता है ये भी लिख लिया। पूछा क्या गया है? इज 1 लीटर इनफ टू पेंट द वॉल्स विद 2 कोट्स? ठीक है, तो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन क्या हो गई आपकी? व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ फर्स्ट वॉल, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ 15 into 8, and the area of second wall, that is 12 into 8 square feet. Reason क्या दिया? Since we need to find the total area that will be covered with the paint, we use the formula of area of rectangle. हमने wall के ऊपर पेंट करना है like this, तो हम क्या करेंगे? जितनी लेंथ है और जितनी ब्रेथ है या जितनी हाइट है, लेंथ इनटू हाइट भी आप लिख सकते हो, लेंथ इनटू ब्रेथ। वैसे हाइट लिख दो, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो फाइंड द टोटल एरिया ऑफ बोथ द वॉल्स एंड कंपेयर विद 350 स्क्वायर फीट। तो हम क्या करेंगे? दोनों एरियाज निकाल लेंगे, दोनों वॉल्स के एरियाज निकाल लेंगे और कंपेयर करेंगे कि वो टोटल एरिया कितना आ रहा है। क्या वो 350 स्क्वायर फीट आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर उससे ज़्यादा है या कम है। नाउ come to the second step, that is solve the problem for wall 1। हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया क्योंकि सबसे पहले स्टेप में हमने सिर्फ फॉर्मुलेशन की थी। अब सेकेंड स्टेप में हम उसे सॉल्व करेंगे। तो टोटल एरिया कितना आ गया? 120 स्क्वायर फीट फर्स्ट वॉल का, राइट। अब सेकेंड वॉल में जब हमने फॉर्मूला लगाया लेंथ इनटू हाइट का, तो कितना आ गया एरिया? 96 स्क्वायर फीट। और टोटल एरिया जितना उन्होंने पेंट करना है दैट इज 120 प्लस 96 इक्वल्स टू 216। अब ये तो एक बार कोटिंग करने का एरिया, हमने कितनी कोटिंग करनी है? वी हैव टू कोट इट डबल। सो डबल कोटिंग इक्वल्स टू 2 into 216 gives rise to 432 square feet. Here you can see the total area of double coating is 432 square feet. Now third step would be interpretation. आप interpret करोगे। 1 liter of paint covers only 350 square feet. Therefore this will not be enough to paint both the walls with double coating. तो इससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि इतना पेंट इनफ नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ 350 स्क्वायर फीट के एरिया को पेंट कर सकता है, बट हमें कितना एरिया चाहिए? वी नीड 432 स्क्वायर फीट एरिया। So the fourth step is validation. The total area to be covered is 432 square feet, but 1 liter can cover only 350 square feet, which is insufficient. So the answer is valid. तो इससे हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमें कितना पेंट चाहिए, लेकिन हमारे पास कितना पेंट अवेलेबल है। तो ये इक्वेशन जो हमारे पास बनी थी, जिसे हमने फॉर्मुलेट किया, सॉल्व किया और इंटरप्रेट किया, इसने हमें क्लियर कर दिया कि हमें और कितना पेंट रिक्वायर्ड है। किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं माइंड में रखी कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्लियरली पता लग गया। बिकॉज 432 इज़ फार ग्रेटर देन 350, तो हमें दोनों का डिफरेंस पता लग गया कि हमारे पास इतना पेंट और चाहिए कम से कम, ताकि ये जो डिफरेंस वाला एरिया है इसे कवर अप किया जा सके। यू कैन अगेन गो थ्रू ऑल दी स्टेप्स। फर्स्ट इज फॉर्मुलेशन, सिर्फ फॉर्मूला आपने राइट करना है कि क्या डिराइव कर रहे हो आप, कौन सा अप्लाई कर रहे हो आप, अगर नोन है ऑलरेडी। सेकंड है सॉल्वेशन, सॉल्व द प्रॉब्लम, आपने उसको सॉल्व करना है, उस फॉर्मूला के बीच वैल्यूज अप्लाई करके निकाल लेना है आंसर। थर्ड इज इंटरप्रिटेशन, फिर आप इंटरप्रेट करोगे कि कितना आपसे डिमांड किया गया था, कितना आपके पास अवेलेबल था और कितना आपको और चाहिए या कितना बच जाएगा। एंड लास्ट आपके पास वैलिडेशन आ जाएगी। अगर तो उस फॉर्मुलेशन
सॉल्वेशन और इंटरप्रिटेशन के तीनों स्टेप से आपको ये क्लियर हो जाता है दैट दिस कैन बी सॉल्व्ड, देन द फॉर्मुलेशन इज वैलिड, अदरवाइज this is not valid. So students, for this you can also refer page 307, 308, 309 and 310. That is example number 1, example number 2, example number 3 from your NCERT book. उन एग्जाम्पल्स को बेटा आप रीड करोगे जो कि मैथमेटिकल मॉडलिंग पर ही बेस्ड हैं. यू विल रीड देम थॉरली एंड यू विल कम टू नो हाउ वी आर फॉर्मुलेटिंग, सॉल्विंग, इंटरप्रेटिंग एंड validating any mathematical problem. Tomorrow we shall discuss about solving real world problems which are based upon mathematical modeling. रियल लाइफ में जैसे एक एग्जांपल तो मैंने बेटा आपको आज समझा ही दी है, हम और एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे जो कि रियल लाइफ पे बेस्ड होगी और उसमें मैथमेटिकल मॉडलिंग को हम कैसे यूज़ करते हैं. आप अपनी नोटबुक में बेटा मैथमेटिकल मॉडलिंग की हेडिंग लिख के इस टॉपिक को स्टार्ट करोगे. फॉर दिस यू कैन go to concept time 13 which is given at SB 29 in your supplementary book. From here you can write the definition of mathematical models. उसके बाद कौन से स्टेप्स होते हैं, जो एक ग्राफ आपको दिया हुआ है उससे भी ड्रॉ कर सकते हो. बट बिफोर दैट यू विल राइट डाउन दिस स्टेप्स ऑफ solving any word problem through mathematical modeling, that is formulation, solve the problem and interpretation. And after that you can refer concept time 14 which is given at SB 30 in your book. यहाँ से आप इस टेबल को बना सकते हो, इस ग्राफ को, इस फ्लो चार्ट को बना सकते हो आप, जो कि मैथमेटिकल मॉडलिंग के ऊपर बेस्ड है. Okay, that's all for today. We shall discuss the real life problems and advantages and limitations of this in the next lecture. Happy learning.